shift our focus to other states where high decibel battles are underway, including Tamil Nadu, Assam, and of course, West Bengal. All 39 seats in Tamil Nadu have gone to polls to date. Only has one phase to vote in. The BJP is looking at making inroads in the DMK Congress stronghold by fielding high-profile faces such as K. Annamalai and Tamilisai Sundararajan. The Indie bloc hopes for a rerun of their sweep in 2019 with heavyweights such as Kanni Modi, Dayanidhi Maran and Karti Chidambaran. Meanwhile, a high-octane battle between the BJP and the Congress is taking place in Assam as well, especially in Dibrugarh and Jorhat. In neighbouring West Bengal, 3 seats have gone to polls, including Cooch Behar, Jalpaiguri and Alipurdas. A three-way battle is on between the BJP, Congress and TMC. Back in 2019, the BJP swept all 3 seats and is looking to retain these seats once again. Well, so far, what has been the voter turnout? I'm going to turn to my colleague Asavri, who's going to take us through this report. Asavri, over to you now. Thank you so much, Vineet. Let's quickly just jump into it. As far as Dibrugarh is concerned, as of 3 p.m., 60.83% voters have turned up. So, of course, we're starting with Assam. We're going to be taking a look at a couple of more states. As far as Jorhat is concerned, 64.84% voters have turned up until 3 p.m. Quickly taking a look at Chennai South, we have 40.9% voters who've turned up until 3 p.m. Quickly shifting our focus to Chennai Central, where 37.62% voters have turned up compared to 2019 over there. Taking a look at Coimbatore over here, 47.03% voters up until 3 a.m. compared to, of course, 63.8% over there back in 2019. Taking a look at Sivaganga, where 48.03% voters have turned up until 3 p.m. So, of course, more constituencies coming in. Thuttikudi, 49.38% voters up until 3 a.m. Ramanathapuram, 52.46 voters have turned up until 3 p.m. Taking a look at Cooch Behar, where 65.54 voters have turned up so far. Jalpaiguri viewers, 67.28% voters, of course, comparing that to 86.51 over there. So, of course, these are the constituencies that we are, in fact, taking a look at. Vineet, over to you. Asavri, thank you for that report. We're going to turn to my colleague Rainik, who's joining us at this point in time from Cooch Behar. Rainik, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? Rainik? हाँ, चलिए, बड़ा मुकाबला है आज कूच बिहार से। एससी सीट है। निशित प्रामाणिक जो बीजेपी के हैं, जो पिछली बार 2019 में जीते थे, वो आज उनके लिए लोग अगर कहें तो मैदान में उतरेंगे। जलपाईगुड़ी भी एक एससी सीट है, जहां से डॉक्टर जयंता कुमार रॉय एक तरह से अभी तक इनकम्बेंट हैं। अलीपुरदौर से जॉन बरला है, एक शेड्यूल्ड ट्राइब की सीट है ये, और ये तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी की है। अभी तक ये जो 3 सीटें हैं, आपके अनुसार ज़मीनी तौर पर क्या हरकत देखने को मिली है? जो मतदान है वो किस प्रकार का रहा है, उसकी प्रणाली बताइए। और ये भी बताइए कि मतदाताओं के जहन में अभी सबसे बड़ा सवाल क्या है? क्यों वो भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस को या फिर कहें तृणमूल कांग्रेस को वोट देने के लिए उत्साहित है? क्या अभी भी वेस्ट बंगाल इस हैंगओवर में है कि शायद टीएमसी जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल नज़दीक थी, 22 सीटें मिली थी मेरा ख्याल है उन्हें, और भारतीय जनता पार्टी को 18 मिली थी, इस बार क्या अलग सोच लेकर मतदाता आए हैं और टीएमसी आई है बीजेपी का खतरा टालने के लिए? एकदम विनीत, पहले तो बताऊंगा कि दोपहर 3 बजे तक जो वोटर टर्नआउट है उसका संख्या ही बोल देता है कि ये तीनों जगह जलपाईगुड़ी, अलीपुरदुआर और कोच बिहार, ये तीनों जगह में किस तरीके से लोग बाहर आके वोट दे रहे हैं। मतदान का ये जो उत्सव में शामिल हो रहे हैं। टोटल 66.34% ये तीनों जगह में अभी तक वोट पड़ा है 3 बजे का रिपोर्ट के मुताबिक। मैं दिखा सकता हूँ कि अभी घड़ी में 4:30 बजे है और उसी टाइम में कोच बिहार का एक केंद्र, उसी जगह में पोलिंग स्टेशन के बाहर कितना लाइन है और किस तरीके से लोग आ रहे हैं। आप जो पूछ रहे थे कि कौन से मुद्दे के ऊपर ये लोग फोकस कर रहे हैं, वो डायरेक्टली इनसे ही पूछ लेते हैं।
आज ये जो मतदान दे रहे हैं आप लोग आ रहे हैं, कौन से मुद्दे के ऊपर मेनली फोकस रहेगा? मतदान के ऊपर ही फोकस है हम लोगों का। ये जो पिछले 5 साल आप लोग जो मांगे किए गए थे आप लोगों की तरफ से, वो फुलफिल हुआ? हाँ। तो अगले 5 साल के लिए क्या चाहेंगे? वोट देखा जाए, नतीजा क्या निकलता है देखा जाए। अभी तो मतदान शुरू हुआ, ख़त्म ही नहीं हुआ है, अभी तो ख़त्म होने वाला है कुछ समय के बाद, तो देखते हैं क्या है। आगे जाने का कोशिश करूंगा कि अंदर बहुत सारे महिलाओं हैं, कौन से इशू के ऊपर फोकस करेंगे? कौन से इशू आप बंगाल समझते हैं? मुद्दा क्या है? अरे बच्चे लोगों का जो पढ़ाई हो रहा है वो शिक्षा के ऊपर। तो ये 5 साल का काम में आप लोग खुश है? हाँ हाँ खुश हैं। ये अगले 5 साल में क्या क्या प्लानिंग है, क्या क्या चाहेंगे? मैं हिंदी नहीं बोल रहा हूँ। কি চাইবেন আগামী 5 বছরের জন্য? जो शिक्षा व्यवस्था ভালো হোক সেটাই যাবো। आपका क्या, आप तो मतदान देने आ रहे हैं, आपका क्या मन में है, क्या चल रहा है मन में? मैं अब कुछ नहीं चल रहा, मुझे पता नहीं इतना कुछ। चाहिए हम लोगों को, इंडस्ट्री चाहिए बच्चों लोगों के लिए, ठीक है? इंडस्ट्री जो पढ़ाई कर रहा है उसको तो नौकरी मिलना चाहिए ना, इसीलिए इंडस्ट्री चाहिए। हेल्थ का इशू है, हेल्थ थोड़ा सा अच्छा हो, बाहर नहीं जा सकते हम लोग। दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से ये सिर्फ मतदान नहीं, ये एक मतदान का सेलिब्रेशन बोल सकते हैं। बंगाल का एक सेलिब्रेशन का माहौल है। सुबह से ही दिखा जा रहा है कि कोच बिहार का हर एक बूथ में महिला हो या बुजुर्ग हो या यूथ हो, सब लोग मतदान के ये उत्सव में शामिल हो रहे हैं। कौन से मुद्दे के ऊपर फोकस करेंगे आप लोग? কি বলবো, বলার তো বাংলাই বললাম। দিতেছি ভোট, এখন মনে করেন ছেলে চাকরি বাকরি কি করে। नौकरी यानी कर्मसंस्थान के ऊपर जोर देंगे। ये बहुत सारे लोग इधर बैठे हुए हैं, सबका शायद ভোট हो चुका है, ভোট দিয়ে দিয়েছেন। কি কোন জিনিসের উপর ফোকাস করলেন ভোট দেওয়ার জন্য? এটা এখনো ঠিক করি না, যেটা সত্যি অনেক কিছু পাওয়ার আছে, জানি না কি পাবো না পাবো, তাকেই বুঝে ভোটটা দিয়েছি, এইটুকুই কথা। এই বয়সে আর সব কি পাবো। रैनिक आप ये भी जानकारी लेने की कोशिश कर सकते हैं कि लीडरशिप के लिहाज से, नेतृत्व के हिसाब से बंगाल की जनता किसको देखना चाहेगी, ममता बनर्जी को या फिर प्रधानमंत्री मोदी को? एकदम, ये एक सवाल आप जो बोले थे, ये सवाल एक बार करना चाहूँगा कि ये जो लीडरशिप के मामले में, आप लोग तो बंगाल से बिलोंग करते हैं, तो ये लीडरशिप के मामले में किसको आगे रखेंगे, नरेंद्र मोदी जी को या ममता बनर्जी को? এখানে আমার নো কমেন্টস, আমি কিছু বলতে পারছি না। आप किसको आगे रखेंगे? একই বক্তব্য এখনো কেমন आप বক্তব্য একই क्या वक्तव्य है? যে এখন मोदी जी को आगे रखेंगे कि ममता बनर्जी को आगे रखेंगे? এখন যে কে কি হয় বলতে পারছি না। एकदम सबके मन में दिखता है कि किसको आगे रखेंगे, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी का फैक्टर काम करता है और दूसरी तरफ पूरा देश भर में मोदी जी का फैक्टर काम करता है। और बंगाल में ये कोच बिहार सीट में भी कुछ दिन पहले मतदान के प्रचार में प्रधानमंत्री जी का जो सफर था, उस सफर में से बीजेपी का ऐलान कर दिया गया था कि इस चुनाव में 2024 चुनाव में बीजेपी का मोदी फैक्टर एक बड़ा मामला होने जा रहा है बंगाल में। और सुबह से ही दिखा जा रहा है कि कोच बिहार, जलपाईगुड़ी, अलीपुरदुआर, ये तीनों जगह में जिस तरीके से मतदान हो रहा है, जो वोटिंग परसेंटेज है 66.3% टिल 3 PM, ये वोटिंग परसेंटेज ही कहला देता है कि किस तरीके से लोग बाहर आ रहे हैं। रैनिक आपने बिल्कुल जो ठीक वोट कहा, देने का अगर हम उनका 2019 के अधिकार आंकड़ों प्रयोग पर कर भी, रहे हैं। रैनिक आपने बिल्कुल ठीक नब्ज पकड़ी, अगर हम 2019 के आंकड़ों पर भी अगर गौर फरमाएं तो लगभग 84% वोटर टर्नआउट था। कूच बिहार की जो जनता है वो अपने प्रत्याशियों को और अपनी राजनीति को काफ़ी गंभीरता से लेती है। एकदम
यानी देखिए 2019 में भी 84%, जैसे कि आप बोले थे 84% का वोटर टर्नआउट था। यानी ये नॉर्थ बंगाल में हर वक्त दिखा जाता है, नॉर्थ बंगाल में वोटर टर्नआउट सबसे ज्यादा ही होता है और नॉर्थ बंगाल के लोग बाहर आते हैं, वोट देते हैं और खुद का जो वोट अधिकार वो लोग प्रयोग करते हैं। मगर 2021 का अगर बात करें तो बहुत सारे घटना भी सामने आता है। 2021 विधानसभा चुनाव में इस कोच बिहार का शीतलकुची में जिस तरीके का हादसा का घटना सामने आया था, जिस तरीके का हिंसा का घटना सामने आया था, पोस्ट पोल वायलेंस जिस तरीके से सामने आया था, और उसी सिलसिले में ये 2024 में एक टारगेट था, एक चैलेंज था हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि वोटर्स को बाहर लेके आया जाए बिना डर में। ये एक बार दिखाने का कोशिश करूंगा कि हर एक बूथ में सेंट्रल फोर्स दिया गया है। ये कोच बिहार में, सिर्फ कोच बिहार का 2043 जो बूथ है उस जगह में 112 कंपनी सेंट्रल फोर्स दिया गया है और वेस्ट बंगाल पुलिस का 5000 के ऊपर पुलिस इधर मौजूद है और क्विक एक्शन टीम भी इधर मौजूद किया गया है। यानी पूरा सुरक्षा का सुनिश्चित करने के लिए पुलिस एंड सेंट्रल फोर्स पूरा तैयार है और इसी बात को सामने रखते हुए शाम में 4:30 बज चुके हैं और वोटर किस तरीके से बाहर आ रहे हैं और अभी भी सुबह से लेकर कोच बिहार, जलपाईगुड़ी हो या अलीपुरद्वार, ये तीनों जगह में छोटा मोटा हादसे का घटना। रैनिक, मैं आपके पास वापस आऊंगा। लेट मी इन फैक्ट कट अक्रॉस टू माय कलीग Belly Thomas, who's joining us from Coimbatore at this point in time. Belly, I hope you can hear me and thank you for speaking with us. Yes. Well, BJP, well, you know, it's a hot constituency for the Bharatiya Janata Party. Their raging and rising superstar Annamalai is contesting from Coimbatore. You have DMK's Rajkumar and you have Mr. Ramachandran from the AIDMK who are going to be locking horns. But the fact of the matter is, the big question is, rather the big elephant for the Bharatiya Janata Party in the room is, are they going to be able to elbow the dominance that the DMK and the AIDMK have been in fact persisting with in Coimbatore for the last few elections? Indeed, Vineet, there is a flurry of activity since morning, early in the morning, where both the DMK candidate Ganpati Rajkumar and the BJP state president MP candidate Annamalai are doing rounds at every booth, checking as to like how the support is there for that. Well, Annamalai claims that there is a massive support for BJP this time. DMK's Rajkumar also says the same thing. While the AIDMK candidate Ramachandran is nowhere to be seen, and there is some kind of internal fights is what we hear from here. But the voting by people is like enormous this time. Like they just duck the heat, the soaring heat, by coming to vote early in the morning. There were several serpentine queues at polling booths starting at 7 o'clock, and by afternoon it was little lesser. And the polling booth where I am standing here, it's the Sarvagna school, high school, where there is a total number of 6,400 voters. The list they have, the zonal election officer has it, and as of now, close to nearly 3,400 voters have registered, and they expect crowds to come by the next 1 year, 1 hour or so. And so it's a very interesting kind of battle that's happening here in Coimbatore, Vinny. So joining us at this point in time, Vijay, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? विजय जी विनीत जी, 5 सीटें हैं असम में, डिब्रूगढ़, जोरहाट, काजीरंगा, लखीमपुर, सोनितपुर। भारतीय जनता पार्टी इस सीट को लेकर काबिज है। कुछ कैंडिडेट्स को लेके, कुछ प्रत्याशियों को लेके एक तरह से बातचीत हुई थी भारतीय जनता पार्टी में। अभी क्या माहौल है, किन मुद्दों पर आज मतदान किया जाएगा और किस तरीके की तरक्की की अपेक्षा कर रही है असम की जनता?
जी निश्चित तौर पर देखिए, मैं आपसे थोड़ी देर में मैं यहाँ के जनता से मैं जुड़ने की कोशिश करूंगा। और असम में 14 लोकसभा क्षेत्र हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करूं तो 25 लोकसभा क्षेत्र हैं, और इस 14 असम में सबसे अधिक 14 लोकसभा क्षेत्र हैं, जिसमें 5 लोकसभा क्षेत्र के लिए आज चुनाव हो रहा है, जिसमें 86 लाख लोग 35 उम्मीदवारों का भाग का निर्णय करेंगे। अब ऐसे ही एक सेंटर में उपस्थित हूं और देखिए आप, अभी शाम के 5 बज चुके हैं और जो मुख्य द्वार है उसे बंद कर दिया गया, लेकिन जो कतारें हैं अभी भी आप देख सकते हैं, क्योंकि हर प्रजन्म के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं यहाँ पे अपना वोट अधिकार देने। और मैं सीधे सीधे कुछ लोगों के साथ मैं जुड़ना चाहूंगा जो पहली बार जो भी वोट देने आएंगे। सर मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्या कहेंगे, आज मतदान देने आए हैं यहाँ पे आप, क्या रहेगी आपकी पहली प्रतिक्रिया, क्या कहेंगे आप? अच्छा एक बात बताइए, आप जो घर से निकले थे, आप वोट देना है, तो मन में क्या चल रहा था, किस तरह से बदलाव आप चाहेंगे सरकार के द्वारा? बदलाव तो देखिए, डेवलपमेंट में टाइम तो लगता है, पहले से डेवलपमेंट बहुत हुआ है। जब हम स्कूल्स में थे तब फर्स्ट टाइम बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, उसके बाद से अभी तक तो चेंजेस हमको देखने को मिला है। तो उम्मीद है आगे भी ऐसे चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये थी देखिए विनीत, ये लमसम लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, क्योंकि जिस तरह से काम हुआ है उस यूथ जो लोग हैं, यूथ ज्यादातर निकल के आए हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, और मन में जो जितना उन्होंने बताया, और उन्नयन जो भी सरकार आए और उन्नयन का काम करे, और यूथ को उन्नयन ही चाहिए। तो इस मामले में देखिए 5 लोकसभा क्षेत्रों में अभी भी चुनाव है, आज हो रहा है, और सुबह 7 बजे से ही हमने देखा हर गांव मोहल्ले शहर में हमने घुमा, जहां जहां वोटिंग जो सेंटर्स हैं। अगर मैं बताऊं, तिनसुकिया में उपस्थित हूं और डिब्रूगढ़ लोकसभा क्षेत्र में तिनसुकिया जिले में जो चुनावी जिला है उसमें 689 ऐसे वोट केंद्र हैं वो बनाए गए हैं, और जिसमें लोग सुबह से ही लोगों का तांता है। विजय, डिब्रूगढ़ की अगर अहमियत की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इस कंस्टिट्यूएंसी को, इस सीट को बहुत ही गंभीरता से लेती है। रामेश्वर तेली जो थे, जो यहाँ से पहले 2 बार चुनाव जीत चुके थे, उनको बाहर किया गया। सर्बानंदा सोनोवाल को उनकी जगह खड़ा किया गया, और बहुत ही बड़े कद्दावर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की। ये साफ जतलाता है कि इस कंस्टिट्यूएंसी को भाजपा बहुत गंभीरता से और संगीनता से लेती है। देखिए निश्चित तौर पे देखिए, डिब्रूगढ़ लोकसभा क्षेत्र जो है 13 नंबर डिब्रूगढ़ लोकसभा काफी अहम है 14 लोकसभा क्षेत्रों में से। अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ से डिब्रूगढ़ लोकसभा क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री असम के हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, और दूसरी तरफ कहें जो इंडिया की जो गठबंधन की जो बनी है, दल बनी है, जो विरोधी एक मंच के समर्थित प्रार्थी हैं लुरिनज्योति गोगोई, जो असम जातीय परिषद के सभापति भी रह चुके हैं, पहले छात्र नेता के बड़े नेता भी थे, छात्र संगठन के बड़े नेता भी थे, और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, मैं कह दूं मनोज धनवार। तो ये त्रिकोणीय लड़ाई है डिब्रूगढ़ में। डिब्रूगढ़ की जब पूरी तरह बात करूं तो त्रिकोणीय लड़ाई है, और तीनों दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है इस डिब्रूगढ़ लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान। अगर मैं कहूं आम आदमी पार्टी के, तो देखिए पंजाब के। चलिए विजय, इस जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके पास वापस जरूर आएंगे। Well, my colleagues have filed ground reports from various parts of the country on the first day of polling. We're going to go across and listen to some of them. We are at present at the Sarvagna School in central Coimbatore, where there are 9 booths in this voting booth, and the ARO says that there are a total number of 9,400 votes here in this voting booth, in which the time is around 4, and a total number of 10,400 votes people have casted their votes at this booth, which is close to 50% is what the election officer tells our channel. So we have with me 2 young voters here, one is Manoj and one Bala. So let's find out what are the issues in their constituencies and about the voting. Well, Manoj, where do you come from, and why are you coming at 4 o'clock for voting? Actually, I went to the temple and town, so I had to come back early and voting now.
Oh. We have applied. Okay. So what do you think are the issues in your Pakistan? Generally, I would say people need to be fair. We see a lot of people are not ready for not making people need to be fair. Our voice पश्चिम बंगाल के 3 जिला अलीपुरदुआर, जलपाईगुड़ी और कोचबिहार तीनों जगह में करीब 5000 के ऊपर बूथ में आज मतदान होने जा रहा है। आज सुबह से ही ये जो कोचबिहार का एक एक क्षेत्र है, एक एक बूथ है, उस जगह में लाइन दिखाई दे रहा है और ये मॉडल बूथ है जिसमें वुमेन कंट्रोल जो पोलिंग स्टेशन है और उसमें दिखाया जा रहा है कि सेंट्रल फोर्स को देकर सिक्योरिटी दिया गया है। कुल मिला के कोचबिहार में 112 के ऊपर सेंट्रल फोर्स मौजूद किया गया है। वोट देने आए हैं उन लोगों के साथ मैं बातचीत करूंगा कि मैडम ये जो आज चुनाव दे रहे आ रहे हैं आप लोग, कौन से मुद्दे के ऊपर फोकस है आप लोगों का? हमें भी कुछ नहीं बोलना चाहते, मतलब इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते। नया जो मैडम नया जो जिनको चुनने वाले हैं, क्या उम्मीद है उनसे? क्या अगले 5 साल में क्या क्या चाहिए आप लोगों को? क्या क्या उम्मीद लेके आज आए हैं? डिमांड तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी हम कॉम्प्लीमेंट नहीं देना चाहते हैं। देखते हैं कि आगे क्या होते हैं। एक कुछ सोच के तो हम लोग वोट देने आए हैं ऑब्वियसली, लेकिन अभी इतना क्लियर कॉम्प्लीमेंट देना भी बहुत मुश्किल है। देखते हैं कौन से मुद्दे के ऊपर फोकस रहेगा? बहुत कुछ है तो उसके मतलब अभी क्लियरली कॉम्प्लीमेंट देना बहुत मुश्किल है। कौन से मुद्दे को फोकस करेंगे आप लोग? एम्प्लॉयमेंट और लोकल इशू के ऊपर फोकस रहेगा कि नेशनल इशू? नेशनल, लोकल, बोथ। इधर देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग भी आए हैं सर, सुबह सुबह वोट देने के लिए आए हैं। कौन से मुद्दे के ऊपर फोकस है आप लोगों का? जी एक्चुअली मुझे 3 मुद्दों के ऊपर मेनली फोकस है। सबसे पहले देश में जितनी चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं वो कम होने चाहिए, ठीक। दूसरा क्राइम देश से एकदम कम होना चाहिए। और तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है देश में, अनएम्प्लॉयमेंट, नौकरी आजकल एकदम किसी को नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, ये कम होना चाहिए। और जो गरीब बच्चों है उनके लिए फ्री एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये 3-4 मुद्दे एकदम नॉट फॉर ओनली स्टेट एज वेल एज नेशनल। को भी पूछूंगा कि ये कौन से मुद्दे के ऊपर आप लोग फोकस करेंगे? बेसिकली मैं जैसे यूथ हूँ तो एम्प्लॉयमेंट मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा। नहीं तो हम लोग वेस्ट बंगाल स्टेट छोड़ के अभी दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई यहाँ पे जाके जॉब के लिए जाना पड़ता है। अभी वोट के लिए स्पेशली आए हैं यहाँ पे। सर पिछले 5 साल में आप लोग जो सोचे थे वो ऐसा फुलफिल हुआ? कुछ हुआ है बट बहुत बाकी है अभी। वो जो बोल रहा है सब लोग कि हो गया 100% हमने फुलफिल कर दिया, ये हुआ नहीं है अभी। कौन से मुद्दे के ऊपर फोकस रहेगा? वही जो बोल रहा है अभी कि अनएम्प्लॉयमेंट और भ्रष्टाचार, ये तो एक प्राइम मुद्दा है अभी। मिनिस्टर उदयन गुहा जी इधर मौजूद है। उधर वो भेटागुड़ी, कोचबिहार का भेटागुड़ी में आके वो विजिट कर रहे हैं कि किस जगह में कौन से तरीके से वोट हो रहा है। कि सुबह से ही लगातार बहुत सारे कंप्लेन आ रहा है उधर, और क्या बोल रहे हैं मैं देखना चाहूँ। যার বিরুদ্ধে এফআইআর আছে সেই লোক এখানে এজেন্ট হয়ে বসে আছে, বিজেপির এজেন্ট হয়ে বসে আছে। এই স্কুলে আমাকে দেখে ঢুকে গেল নন অ্যাভেলেবল ইয়েতে সেকশনে, যার বিরুদ্ধে এফআইআর আছে সে বিজেপির এজেন্ট। पुलिस की করছে? पुलिस ओके तो ढोकार मुख। उदयन जी बहुत सारे जगह से कंप्लेन आ रहा है कि टीएमसी के तरफ से बीजेपी कर्मियों को रोका जा रहा है। कहाँ का हमारा तो पता नहीं, हम तो पत्थरबाजी के बात भी आ रहा है। पत्थर फेंकने का बात वो हम हमारा पता नहीं क्या हो। अब भाई हमें सामने ना गया हमें जान अपना किस कैसा सिचुएशन देख रहे हैं आप? क्या सिचुएशन देख रहे हैं? सिचुएशन हम भेटागुड़ी में आया है, हम देख रहे हैं। जैसे कि वो बोल रहे थे कि उनके पास अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं आया है, वो भेटागुड़ी में आया है। भेटागुड़ी में वो देख रहे हैं कि किस तरीके से चल रहा है। मगर उसका जो कंप्लेन है कि इस भेटागुड़ी का जो स्कूल है
मेरे पीछे ठीक इसके इस स्कूल में जो बूथ है उस बूथ में जो पोलिंग एजेंट बैठाया गया है बीजेपी की तरफ से, उनके अगेंस्ट में एफआईआर है और एफआईआर होने के बावजूद भी उनको बैठाया गया है, ऐसा कंप्लेंट भी उदयन गुहा की तरफ से किया जा रहा है। अभी देखना है कि इसी जगह में और कुछ ही देर बाद निशित प्रामाणिक भी वोट कास्ट करने के लिए आने वाला है और उसके ठीक पहले ही उदयन गुहा इधर मौजूद है, जिसके साथ बार बार से टसल होने के लिए देखा गया था निशित प्रामाणिक के साथ, और वो उदयन गुहा ही इधर मौजूद है और वो बार बार से क्लेम भी कर रहे हैं कि इस तरीके का बीजेपी के ऊपर क्लेम कर रहे हैं, मगर टीएमसी के खिलाफ जो कंप्लेन आ रहा है उसके बारे में वो कुछ नहीं जानते, ऐसा बात भी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अविनाश शुक्ला के साथ प्रणीत दत्तो, इंडिया न्यूज, कोच बिहार। Presently, we are here in Dibrugarh constituency of Assam. We are at the Sahitya Sabha Bhavan where the voting is going to take place soon. We are already seeing people turning out in numbers. We are going to speak with the people here to know more about what they think is right for Dibrugarh. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.